Good morning, all of you. How are you all? Okay, so our 13 chapters are done. Today we will start our chapter number 14. What is the name of the chapter? Shelters around. Shelter means house. Shelter means house. So in this chapter we will learn about the houses we make. Houses. Yes, and special houses, temporary houses, shelter for animals, and material used in construction. Okay, in your previous classes, you learn about the types of houses. What is house? What are the types of house? You already learn about them in your previous classes. फर्स्ट सेकंड क्लास में आप लोगों ने अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है. व्हाट इज द हाउस? व्हाट इज द हाउस? But what is house? House is a place where people live. What is house? House is a place where people live. So in this chapter we will learn about the more about the houses and what are the material used in construction of a house. Sit. As you all know, we need a house to live in, and house protect us from heat, cold, rain, dust, animals and thieves. है ना? हमें हाउस बहुत सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है. And you already learn about the types of houses. What are the types of houses? Yes, आप लोगों ने previous class में पढ़ा है. Houses are of two types. Houses are of है ना? आप लोगों ने सिर्फ two types पढ़ा है. एक कच्चा हाउस एंड कच्चा हाउस is made up of mud, leaves, bamboo, straw, and pakka house is made up of brick, cement, steel, concrete. Yes? So आपको ये भी पता है कि पक्का houses found in cities and कच्चा house is mostly found in villages. कच्चा houses आपको mostly villages में देखने को मिलते हैं and पक्का houses we found in cities. So pakka houses are also two types, bungalow and multi-story buildings. Bungalows and yes, bungalow means independent house. It's called, we also call it villa. And multi-story building, your flat है ना? फ्लैट्स होते हैं, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे जो फ्लैट्स होते हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. वहां पे भी लोग रहते हैं. ओके, सो लेट्स बी. और अब आप जो आगे समझोगे वो आप फिर जो एक्सेसिव है वो इस चैप्टर में वो है टेम्परेरी हाउसेज एंड स्पेशल हाउसेज. ओके, अभी हम स्टडी करेंगे. पहले हम कुछ बेसिक क्लियर करेंगे. ओके, so kids, look at the picture and fill in the blanks. First picture is of cave. First picture is of cave. Write the spelling CAVE. Fill it in a capital letter. CAVE. Where's the book? Forget at home. Beta, bring regular. Next picture is of tree. What is the spelling of tree? TREE. Tree. Fill it. Next. Hut. Very nice. HUT. And next one. Next. All are shelters.
These all are shelters? Yes. Who lives in a cave? Lion. Okay. Lion, tiger, bear. And who live on the trees? Birds, monkeys. And in heart, who lives? Humans. And nest? Nest is the shelter of birds. Good. So, what is mentioned in the chapter? Listen carefully and be concentrate. These are different kinds of shelter. Shelter means houses, the place where we live. We all need shelter. Just like we need shelter, animals also need shelter. जैसे आपको shelter चाहिए वैसे animals को भी चाहिए, है ना? So there are different kinds of shelter. Okay. Some are natural. Some shelters are natural means which is not made by humans. वो natural है. God gifted है. Okay. Just like trees and caves, they are natural shelters. Human, हमने made किया है. We are humans. Is we made this? No. And some are man-made. Some shelters are man-made shelter. कौन सा इसमें से बताओ? Tell me. Hut. Hut is a man-made shelter. Yes. Like hut and houses. Everyone needs shelter. Everyone means humans and animals. We all need shelter. Birds को भी shelter चाहिए, humans को भी चाहिए, animals को भी चाहिए, सबको shelter चाहिए. Yes, it is a place where we live and stay safe and comfortable. Okay, what is house? What is shelter? Shelter is a place where we live and it protects us from rain, cold, heat, wild animals and yes, thieves. Shelter आपको एकदम सेफ रखता है. You feel comfortable in your house. आप अपने हाउस में comfortable होते हो? Okay. Next, houses we make. Houses. So we make two types of houses. कच्चा house, पक्का house. ये तो आपने पढ़ा है ना आपके प्रीवियस क्लासेस में. बट टेम्परेरी हाउस भी हम लोग ये बनाते हैं और स्पेशल हाउस भी हमें बनाते हैं. ओके, टेम्परेरी में जहां आप थोड़े टाइम के लिए रह रहे हो, दीज आर टेम्परेरी हाउस. ओके, जो आप हम कंटिन्यूसली थोड़ा ना यूज ले रहे हो. जब आप कहीं घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा कि नोमैड्स जो है वो कारावैन को यूज करते हैं, तो उनका वो हमेशा का उनका परमानेंट शेल्टर छोड़ना है. Wait. Okay, our next topic is houses we make. Early humans did not know how to make houses. Early humans means जो सबसे पहले humans आए थे, ठीक है, जब अर्थ पर ह्यूमंस डेवलप हुए थे तब उनको नहीं पता थे. दे डिड नॉट नो हाउ टू मेक हाउसेस. हाउसेस कैसे बनाना है, सब कुछ तो हमें मिला नहीं था ना, बट ह्यूमन ने धीरे धीरे सब चीजें सीखी है ना. दे लिव्ड इन केव्स. सो अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स. ठीक है, जब अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन केव्स. वो केव्स में रहते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हाउस कैसे बनाना है. ओके, ओवर द इयर्स दे लर्न टू बिल्ड हाउसेज यूजिंग मटेरियल्स अवेलेबल नियर देम. बट धीरे धीरे उन्होंने हाउस मेक करना स्टार्ट करा जो भी उनको अपने नियर में मटेरियल्स मिलते थे. तो अर्ली ह्यूमंस ने धीरे धीरे पहले कच्चा हाउसेज मेक किए, जो उन्होंने किससे बनाए थे? बैम्बू से,
स्ट्रॉ से, लीफ से, मड से, ठीक है ना। इन सब से इन्होंने धीरे धीरे क्या बनाना शुरू किया, हाउसेज, जो मटेरियल्स उनके नियर में अवेलेबल थे उससे उन्होंने हाउस बनाना मेक किया। दे बिगन टू यूज हाउसेज टू स्लीप, ईट, लिव इन सेफ्टी एंड कंफर्ट। और उन्होंने उस हाउस को कैसे यूज करना शुरू कर दिया, सोने के लिए। दे यूज इट फॉर स्लीप, ईट एंड लिव। दे फील सेफ्टी देयर, है ना, वहां पे सेफ फील करते थे। दे फील कंफर्टेबल देयर। ओके, सो दे कंटिन्यूसली स्टार्टेड टू लिव इन शेल्टर। फिर वो धीरे धीरे अपने शेल्टर में रहना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। ओके, हाउसेज आर डिफरेंट टाइप्स। हाउसेज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउसेज होते हैं। दिस इज बिकॉज, क्यों होते हैं, मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग द हाउसेज एंड लोकेशन दे आर बिल्ट इन। तो उनके मटेरियल बेटा किस पे डिपेंड करते हैं, एक तो वो हाउस कौन से किस टाइप के प्लेसेस पे है, कोल्ड रीजन में है, हॉट रीजन में है, कोस्टल रीजन पे है, किस टाइप के प्लेसेस पे है, मीन्स उनकी एक तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, जो भी मटेरियल्स आप यूज करते हो ना बिल्डिंग को बनाने के लिए, तो उनके लोकेशन पे डिपेंड करता है किस टाइप के मटेरियल उनके आसपास नियर बाय अवेलेबल है, ठीक है। और साथ ही उस प्लेस पे किस टाइप का मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे, अगर हम प्लेन्स में रहते हैं, वी लिव इन अ प्लेस, सो वी मेड द हाउसेज ऑफ कंक्रीट, स्टील, है ना। हमारे यहाँ पे हाउसेज किसके बने होते हैं, स्टील, कंक्रीट, ग्लासेस। और बट अगर हम बात करें कोल्डर रीजन की, जो हिली एरियाज होते हैं, वी फाउंड मोस्टली वुडन हाउस देयर। वहां पे हाउसेस किसके बने होते हैं, वुड के। ओके, तो ये डिफरेंस हो गया ना, यस। तो उनकी लोकेशन पे डिपेंड हो गया, यस। ओके, सो हाउसेस कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट। हाउसेस टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो आपने 2 टाइप के हाउसेस ही पढ़े थे, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। बट हाउसेस कैन बी, कैसे हो सकते हैं हाउसेस, टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये टेम्परेरी हाउसेस हैं। यहां पर देखो बेटा, केव्स, कारावैन, हाउस बोट, टेंट, यहां परमानेंट थोड़ा रहते हैं, वी यूज दैम टेम्परेरी, थोड़े टाइम के लिए ही यूज करते हैं, है ना। देखो अब जैसे हाउस बोट का, आप घूमने का, हाउस बोट भी फाउंड, वेयर भी फाउंड हाउस बोट्स। हाउस बोट्स हमें कहाँ मिलती है देखने को, कश्मीर में या फिर केरला में। वी फाउंड मोस्टली हाउस बोट्स देयर, है ना। डल लेक में आपको बहुत सारी हाउस बोट्स मिल जाएगी। तो बट क्या वो हम रहते हैं वहां, नो। सो फॉर अस दीज आर टेम्परेरी हाउसेस, ठीक है। और कारावैन इज अ टेम्परेरी हाउस। व्हाट इज कारावैन, हाउस ऑन व्हील्स, हाउस ऑन व्हील्स। तो व्हील्स के ऊपर हाउस बना होता है, जो वैनिटरी वैन्स आप लोग देखते हो वो कारावैन्स ही है, ओके। सो अब आप इनके बारे में स्टडी करोगे, तो यहाँ पे कुछ कच्चा हाउस और पक्का हाउसेस के बारे में भी डिस्कशन है, जो आपको ऑलरेडी आता है। लिसन, द हाउसेस वी लिव इन आर नॉट द सेम एवरीवेयर। जिस टाइप के हम हाउसेज में रहते हैं वो सब जगह जरूरी नहीं सेम ही हो, दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, ओके। सम आर कच्चा हाउसेज व्हाइल सम आर पक्का हाउसेज। कुछ हाउसेज कच्चा हो सकते हैं, कुछ पक्का हो सकते हैं। आपको ये भी पता है ऑलरेडी, वी द हाउस मेड ऑफ मड, ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ, बैम्बो इज अ कच्चा हाउस। कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ, kacha house is made up of, what are the material we use to make a kacha house? Yes, mud, speak beta, yes, dry leaves, bamboo, straw, we use all these material to make a kacha house, yes. It is usually made by the people
who live in it. तो ये वही लोग बनाते हैं जो इस घर में रहते हैं. ओके. एंड कच्चा हाउस नीड रिपेयर टाइम टू टाइम. इसको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की नीड होती है. अंडरस्टूड? It is mostly found in villages. Where we found कच्चा houses? Villages. ज्यादातर आपको कच्चा houses कहाँ देखने को मिलते हैं? Villages में. Okay. A कच्चा house is not very strong. Is it a strong house? No, because it need repair time to time, so it is not strong house. Okay. Heavy rainfall and strong winds can destroy it. अगर बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ गई, तो हाउसेस डैमेज हो जाएंगे. विंड्स मीन्स मूविंग एयर. विंड्स मीन्स मूविंग एयर जो फ्लो करती है. ठीक है. अब फ्लो करने वाली एयर से क्या होता है? हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जब बहुत तेज हवा होती है तो इस टाइप के हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाती है. सो दे नीड रिपेयर टाइम टू टाइम. ठीक है. सो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग हाउसेस. इन टाउन एंड सिटीज वी फाउंड पक्का हाउसेस एंड इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील, स्टोन, ओके, ग्लासेस और वुड के भी बने होते हैं पक्का हाउसेस. They are not easily destroyed by the heavy rain and wind. है ना? Where we sit? अभी आप कहाँ बैठे हो? You sit in a पक्का house. It is a पक्का house. Your building is made up of these materials: cement, bricks, iron, steel, glass. है ना? तो this is a पक्का house. अगर कोई wind आती है या फिर रेनफॉल होता है या डिजास्टर होता है, सो इट कैन बी डिस्ट्रॉय इजीली? नो, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इजीली. इट इज अ पक्का हाउस. ओके. बंगलोज, बंगलोज इंडिपेंडेंस जो हाउस होता है, बंगलो में जिसमें सब चीजें अवेलेबल होती है, हर फैसिलिटीज होती है. ठीक है. Bungalow, double-storied houses and multi-story buildings which have many apartments are example of पक्का हाउस. पक्का हाउस के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या बताओगे? बंगलोज, विलाज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, डबल स्टोरी बिल्डिंग, ये सब क्या है? पक्का हाउसेस के एग्जाम्पल्स हैं. ओके. और अगर कच्चा हाउस के एग्जाम्पल पूछेंगे तो हट, है ना? ओके. दीज आर परमानेंट हाउसेज. ये हाउस कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं. ठीक है. ये आपके परमानेंट हाउसेज होते हैं. दे कैन नॉट बी मूव्ड. ये मूव्ड हो सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं? नो. सो दे आर परमानेंट हाउसेज. ओके. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, about special houses. Special houses. Look at here. Special houses are of three types. These are special houses. Why we call them special houses? हम इनको special houses क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पर्टिकुलर रीजन में ही मिलेंगे, सब जगह नहीं मिलेंगे. ओके. आपको बहुत सारे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है ना हमारे इंडिया में. देयर आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स है ना? तो सब जगह आपको इग्लूज देखने को मिलेंगे क्या? नो. वी फाउंड दिस टाइप ऑफ हाउसेस इन अ पर्टिकुलर रीजन. एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलेंगे आपको ये. ओके. तो ये स्पेशल हाउसेज है, जस्ट लाइक इग्लू, स्टेट हाउस और स्लैंटिंग रूफटॉप हाउसेस. स्लैंटिंग रूफटॉप हाउसेस. ओके. इस टाइप के हाउसेस होते हैं ना, जो स्लैंटिंग रूफटॉप्स होती है, जो वुड के बने होते हैं. ओके. सो यू नो वेयर वी फाउंड इग्लूज. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. वेयर वी फाउंड इग्लूज? यस.
No. Is we found igloos in hilly areas? We found igloos in cold areas. Cold areas. In mountains where we found lots of snow. जब बहुत सारी स्नो होती है. ओके, पोलार रीजन्स में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे. जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है, आइस गिरती है, ओके, स्नो होती है, वहां आपको मिलेंगे इग्लूज. बिकॉज इग्लूज आर मेड अप ऑफ स्नो. इग्लूज आर मेड अप ऑफ. Sit down. Okay, next, still house. Stilt house. These are made up of wooden poles. अभी हम इसके बारे में और आगे क्लियरली डिस्कशन करेंगे. So wooden poles मतलब ये इनके जो पोल्स होते हैं, बड़े बड़े पोल्स में बने होते हैं. दे मेड देयर वेयर आर द हैवी रेन्स. जहाँ ज्यादा रेनफॉल होता है वहां आपको स्टिल्ट हाउस मिलते हैं. ओके, एंड स्लैंटिंग रूफ टॉप, ये किसके बने होती है? वुड की. और ये आपको हिली एरियाज में मिलेंगे. अंडरस्टूड वृंदा? ओके, सो some houses are built according to the region and climate. कुछ हाउसेस किस पर डिपेंड करते हैं? रीजन मतलब उस प्लेस के अकॉर्डिंग, और वहां पे किस टाइप का क्लाइमेट है. हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, वहां का क्लाइमेट कैसा है ना, वहां पर्टिकुलर रीजन का मोस्टली टाइम वहां का वेदर कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, हॉट रहता है, उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहां हाउसेस डिपेंड करते हैं. ओके, जैसे अगर हम बात करेंगे माउंटेन एरियाज की, वहां का मोस्टली टाइम क्लाइमेट कैसा रहता है? कोल्ड. सो वहां आपको मोस्टली ग्लूज मिलेंगे. ओके, जो पोलर रीजन्स हैं जहां मोस्टली आइस रहती है, जो विच इज कवर्ड बाय स्नो, द एरिया विच इज कवर्ड बाय स्नो वी फाउंड देयर इग्लूज. ओके, तो पर्टिकुलर क्लाइमेट है ना. अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करेंगे तो वहां आपको इग्लूज मिलेंगे क्या? नो. वहां आपको फ्लैट रूफ टॉप्स वाले हाउसेस मिलेंगे, है ना, जिस टाइप के हाउसेस में हम लोग रह रहे हैं, विच इज मेड ऑफ कॉन्क्रीट, है ना, आयरन, सीमेंट, इस टाइप की बिल्डिंग्स मिलेगी. These houses have some special features. और इन हाउसेस के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. ठीक है, इनके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए वो इस टाइप के हाउसेस वहां पे बनते हैं. We find different kind of houses in different parts of India. इंडिया का जो जोग्राफिकल फीचर है, मतलब यहाँ पर हर प्लेस एक जैसा नहीं है. इंडिया हैज अ डिफरेंट लैंडफॉर्म. कुछ एरियाज पे डेजर्ट है, in some area there is a mountain, some is a hilly area, some is a plain land, है ना, some areas are flat. ठीक है, हर एरियाज अलग अलग है. क्या इंडिया के लैंडफॉर्म सेम है? नहीं है ना, डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर है इंडिया का. ओके, और फर्स्ट हम जो टॉक करेंगे, जो बात करेंगे, हम किसकी करेंगे? इग्लू की. इग्लू इज द टाइप ऑफ अ special house. Igloo is the type of a special house. Okay? Igloo का पिक्चर आप सबको दिख रहा है? Igloo is made up of snow. Igloo is made up of snow. सबको दिख रहा है? The area is covered with snow. आपको दिख रहा होगा कि इसके नियर बाय का जो एरिया है वो भी किससे कवर्ड है? स्नो से. ओके, so some people live in very cold regions. कुछ लोग बहुत ही ज्यादा कोल्ड रीजन में रहते हैं. ठीक है, जहां पर स्नो होती है बहुत ज्यादा. ठीक है, अब वो लोग वहां पे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ऑल द टाइम. These regions are covered with snow throughout the year. ये जो रीजन है, ये जो प्लेस, रीजन मीन्स प्लेस, ठीक है, ये प्लेस थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल किससे कवर्ड रहता है? स्नो से. पूरे साल यहाँ पे स्नो ही रहती है. ठीक है, पीपल हु लिव हियर बिल्ड हाउसेज विथ स्नो. तो यहाँ के जो हाउसेज हैं वो स्नो से ही बने होते हैं. ठीक है, वहां आप
हमारे जैसे हाउसेस नहीं बना सकते हो, जो कि सीमेंट ब्रिक्स इन सब से नहीं बन सकते, क्योंकि सीमेंट ब्रिक्स इनको बेटा ड्राई होने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, एकदम बिल्कुल आपको अच्छे से सनलाइट चाहिए होती है। बट इस टाइप के हाउसेस में जो सनलाइट है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वहाँ हाउसेस ड्राई नहीं हो सकते हैं। आपकी सीमेंट जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो सकती है, इसलिए वहाँ पे इस टाइप के हाउसेस नहीं बन सकते हैं। इसलिए वहाँ पर किस टाइप के हाउसेस बनते हैं? स्नो से। वहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है वो क्या होता है? स्नो यूज होती है वहाँ पे, ठीक है, इन अ कोल्ड रीजन, एक्सट्रीमली कोल्ड। ओके, दीज हाउसेज आर कॉल्ड igloos. Who lives in igloos? People who live in igloos, we call them Eskimos. Okay? जो लोग एस्किमोज में रहते हैं, सॉरी, जो लोग इग्लूज में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एस्किमोज। ओके, इग्लूज हैव फाउंड रूफ टॉप्स एंड स्मॉल डोर्स। यहाँ आपको दिख रहा होगा इग्लू का पिक्चर, यहाँ पे आपको एक रूफ टॉप दिख रही है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे एक छोटा सा डोर होता है, ठीक है। बट अंदर से अगर आप जाओगे इग्लू बहुत बड़ा होता है। ओके, अंडरस्टूड? नाउ किड्स, लेट्स सी चेक हियर, दिस पिक्चर इज द इग्लू, ठीक है। what we see inside the igloo, look at here, समझ आ रहा है? हाँ, इग्लू के अंदर आप इजीली रह सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना बेड भी है, ठीक है, या फायर भी होती है, सब कुछ होता है यहाँ पे। इग्लू के अंदर बेटा वार्म भी होती है, वार्मनेस भी होती है इग्लू के अंदर, ठीक है। यहाँ आप एकदम मतलब थोड़ी जो यहाँ के ये जो होते हैं ना बैट्स वगैरह, वो थोड़े से वेट रह सकते हैं, ठीक है, वेट रहते ही हैं मोस्टली। देखो कितना प्यारा, यहाँ पे देखो इतना प्यारा इग्लू है। यस यस, these picture are of inside the igloo. Okay, understood? So this is igloo, it's have a small door, and inside the igloo you already see the pictures, huh? They are everything inside the igloo. And you know there is some hotels also in igloos built in the cold regions. वहां पर इग्लूज के अंदर होटल्स भी होते हैं। यस, ओके, सो आवर पीरियड इज ओवर बेटा, वी विल डिस्कस आवर चैप्टर टुमारो ऑल्सो। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर। ओके, आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस टू यू। ओके, गुड बाय बेटा।